Okay, Assalamu alaikum. Welcome to this online video lecture. I'm re-recording this thing because मैंने जो last recording की थी, I got a note that the audio quality wasn't good enough, so I'm re-recording the entire video, and hopefully this time around it will be more clear, and hopefully you'll be able to understand what I'm trying to say. Okay, so let's look at the first problem. The first problem that we have to do today is problem 3-47. और इस प्रॉब्लम के अंदर व्हाट वी हैव इज वी हैव व्हाट वी कॉल अ शेयर लेग डायरेक्ट. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. ठीक हो गया. इस अरेंजमेंट में what we are asked is we are asked to calculate the forces in the two arms here AB and BC and the cable BD. ठीक है, इन सब के अंदर हमें forces निकालनी, and it is said that these two arms, जो लेग्स इसको जो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, द टू लेग्स ए बी एंड बी सी हैव कंप्रेसिव फोर्सेस एंड द केबल बी डी हैज टेंसाइल फोर्स. तो द कंप्रेसिव फोर्स थिंग इज न्यू फॉर अस बिकॉज ये हमने पहले नहीं देखी थी अभी तक. तो जिस तरह हम अभी तक लेते आ रहे थे कि आपकी जो टेंसाइल फोर्स होगी इट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, सो द कंप्रेसिव फोर्स नाउ इज गोइंग टू एक्ट इन टू द पॉइंट. ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई. हमारे पास दो कंप्रेसिव फोर्स हैं, एक टेंसाइल फोर्स है और एक हमारे पास वेट एक्ट कर रहा है इस नेट फिशिंग नेट का. एंड इट इज सेड कि द मास इज 200 kg. So the weight can be found out by multiplying this thing with 9.81 and that was going to result in 1962 newtons a weight. ठीक है, the weight is going to act vertically downward. ठीक हो गया. तो जब भी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम. और इस केस में वेरी क्विकली वी नीड टू फर्स्ट शो कि हमारा एक्सेस सिस्टम क्या है. वी आर अडॉप्टिंग द एग्जैक्टली सेम एक्सेस सिस्टम दैट वी डिड बिफोर. ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है. ठीक है, और व्हेन वी शो द फोर फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एट पॉइंट बी, they are shown here. Now this might not be very clear. A better representation would be if I try to show the forces directly on the figure here, which I would like to do right now. So this is going to be your weight. ठीक है, so this is the weight W. There is going to be tension, which doesn't look very good. Let me correct this thing. So there is going to be a tensile force in BD. That force is going to act in this direction away from point B because it's tension force. Let's call this FBD. And then we have two compressive forces or compressive forces के लिए. Let me very quickly change the color first so that it is visible. I think this might be okay. Yeah. So compressive forces will act into the point. So they will be drawn like this. See? Not properly angle के ऊपर बनाना मसला होता है. Okay, so this is one force and this is going to be the other force. This is FAB and this one is FBC. So there are four forces in the system. ठीक हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के पास the next thing that we need to do in equilibrium problem in 3 dimensions is that we need to write the Cartesian vectors of all the forces. ठीक, उसके लिए we can see that the weight is acting along the z direction, so it's acting in minus z direction. The remaining 3 forces need to be solved for xyz components, so we need to somehow find out कि इन तीनों forces के xyz components क्या होंगे. And if we look at our problem here, the problem is providing us coordinates of the various points. So point A के लिए x direction में we are going 2 meters. C के लिए in x direction we are again going 2 meters. Point B के लिए in z direction we are going 4 meters and in the y direction we are going 4 meters. And point D के लिए in the y direction we are going minus 5.6 meters. ठीक है, तो सारे coordinates आपको given है. तो the technique that we can use to find our components is the position vector method. ठीक हो गया. तो अगर हम अपनी कार्टेशियन वेक्टर्स लिखने की कोशिश करें तो पहला वाला तो बहुत आसान. तो वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट, इट इज़ 1962. द वेट इज़ एक्टिंग इन माइनस के डायरेक्शन, सो दैट इज़ नोन. तो हम वेट का वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं. फिर बात आ गई आपकी बाकी तीनों फोर्सेस की. इन फोर्सेस के अंदर
let's pick the first one. For example, the first one is FAB. Okay, the force FAB is a compressive force. It is directed upward into the point B. So the force FAB is directed along this line. So this is FAB, right? And so in order to find the force FAB, we need the magnitude FAB, which is currently unknown. We don't know the magnitude. That's the question. We need to find this out. And the direction is going to be defined with the unit vector, which is directed towards B from A. So this direction is actually going to be the direction of UB relative to A. ठीक हो गया? Why B relative to A? Because we are going into the point B. अगर A relative to B होता तो इसका इन्वर्स ली जाती, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड अज्यूम करते उस केस में. तो अभी हम UB relative to A लें. Similarly, FBC can be written as FBC times UB relative to C, because this is also acting into the point in this direction here. On the other hand, जो हमारे पास force FBD आ रही है, the force FBD is acting away from point B because it's a tensile force. So इस केस में जो हमने यूनिट वेक्टर assume किया है, that's UD relative to B. ठीक है? तो in this case, the unit vector is UD relative to B because we want to have the direction of T when we are looking from B. Now, how do I actually calculate the unit vectors? यूनिट वेक्टर्स निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर्स पता होने चाहिए. पोजीशन वेक्टर्स निकाल के वी डिवाइड द पोजीशन वेक्टर्स बाय देयर मैग्नीट्यूड्स एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट कि आपके यूनिट वेक्टर क्या है. और अगर मुझे पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं तो पोजीशन वेक्टर्स निकालने के लिए आर बी रिलेटिव टू ए फॉर एग्जांपल इज गोइंग टू बी आर बी माइनस आर ए, आर बी रिलेटिव टू सी इज आर बी माइनस आर सी एंड आर डी रिलेटिव टू बी इज आर डी माइनस आर बी. क्या मुझे चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पता है? द डायग्राम प्रोवाइड्स मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स ए बी सी डी. तो अब इसमें द फिगर इजंट वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू विजुअलाइज के क्या कोऑर्डिनेट्स है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. इफ यू लुक एट द एक्स एक्सिस, the x-axis is actually passing through point A and it is passing through point C. This means that A and C lie on the x-axis. If they lie on the x-axis, then you do not have any y coordinate of A and C, and you do not have any z coordinate of A and C. Okay, so point A or point C are only going to have x coordinates. When you look at point B के ऊपर, let me clean this up so that we can work a little better. So let's clean this up. Yeah. Point B के ऊपर what we can see is point B is being shown in a plane in the YZ plane. ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. इस पॉइंट का आपको y से कोऑर्डिनेट गिवन है, z से कोऑर्डिनेट गिवन है, x से यू डू नॉट हैव एनीथिंग. ठीक है. एक और तरीका इसको देखने का ये है कि A और C दोनों की लेंथ 2 मीटर है, कि दोनों आर्म्स सेम हाइट पे जाके मिल रहे हैं. दिस इज एक्चुअली अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो दिस पॉइंट B इज एक्चुअली लाइंग इन द YZ प्लेन एट x इक्वल्स टू 0. तो इसका कोई x एक्सिस नहीं है B का. सेम थिंग विद पॉइंट D. पॉइंट D के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट D इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. ठीक है. तो y एक्सिस के ऊपर अगर ये लाई कर रहा है तो इसका x एक्सिस x कोऑर्डिनेट भी 0 है और इसका z कोऑर्डिनेट भी 0 है. तो इन चारों चीज़ों को देखते हुए व्हाट वी कैन फाइंड आउट दैट a इज 200, b इज 044, c इज -200 एंड d इज 0 -5.60. इसके जो स्टेप्स हैं यू नीड टू गो थ्रू द स्टेप्स योरसेल्फ. तो फॉर एग्जांपल RA टर्न्स आउट टू बी 2i, RB टर्न्स आउट टू बी 4j plus 4k and RB minus RI you can calculate yourself. ठीक है. तो ये वाले स्टेप करके RB relative to A, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना और मैग्नीट्यूड निकाल के UB relative to A निकालना. You need to go through these steps yourself. I am going to show you what the result of UB relative to A is. So the magnitude that is going to come up is, the weight is the same, F
AB force vector is equals to the magnitude FAB multiplied by the unit vector of point B relative to point A. ठीक हो गया. Similarly, FBC force vector is equals to the magnitude FBC multiplied by the unit vector of point B relative to point C. And finally, FBD force vector is equals to the magnitude FBD multiplied by the unit vector of point D relative to B. इसमें उल्टा हो रहा है, ठीक है. तो what we have here is this thing is UB relative to A, this thing is UB relative to C, and this thing is UD relative to B. ठीक है, you can check this yourself. Once you have the Cartesian vectors, the next step is to write summation fx, summation fy and summation fz. ठीक. और 3D के अंदर since you already have formed the Cartesian vectors, your job is actually a lot easier when you compare it with 2D problems, because 2D problems के अंदर जब आप summation fx लिखने के लिए बैठेंगे उस वक्त आपको components फॉर्म करने होंगे और उनका प्लस और माइनस साइन भी फॉर्म करना होगा. In this case you do not need to worry about it at this level. ठीक है. तो समेशन fx अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी फोर्सेस में लिखना पड़ेगा कि मेरे पास x कॉम्पोनेंट किस किस फोर्स में. ठीक. तो अगर मैं x कॉम्पोनेंट ढूंढने की कोशिश करूँ तो मेरे पास AB के अंदर x कॉम्पोनेंट है, BC के अंदर x कॉम्पोनेंट है, एंड दैट इज इट. तो मेरे पास समेशन fx कम्स आउट टू बी -2/6 FAB plus 2/6 FBC. Similarly, if I try to write summation Fy equals to 0, I will simply look for the components of the forces जो कि J के अंदर है, J डायरेक्शन के अंदर. तो J के अंदर जो components आ रहे हैं, FAB का component भी है, FBC का component भी है, FBD का component भी है. तो we can write all three components, add them together and set the result equal to 0. तो मेरा क्या आंसर आएगा, 4/6 FAB plus 4/6 FBC minus 9.6 divided by 10.4 into FBD equals to 0. ठीक है. तो मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब मेरी दो इक्वेशंस जो फॉर्म हो रही हैं, अब ना पीछे जो आपको एक चीज़ नज़र आई थी इक्वल टू 0 पहले से लिखा हुआ था, इसलिए तो मैंने उसको बाद में करेक्ट किया था, एंड आई नीड टू मेक द सेम करेक्शन हेयर एज वेल. तो दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू 0, राइट. अब हमने तीसरी इक्वेशन जो लिखनी है वो क्या है, वो समेशन FZ की है. समेशन FZ लिखने के लिए वी नीड टू सर्च फॉर ऑल द Z कॉम्पोनेंट्स. Z कॉम्पोनेंट वेट में भी है, AB में भी है, BC में भी है, BD में भी है. चारों फोर्सेस में Z कॉम्पोनेंट है. आप चारों फोर्सेस का Z कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं. ठीक हो गया. आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई. ठीक है. तीन आपके पास अननोन्स हैं, FAB, FBC, FBD. What we can do is we can represent FAB, FBC and FBD with some unknown variables, for example XYZ. और इसका में फ़ायदा क्या होगा, इसका में फ़ायदा ये होगा कि then we can just simply put these equations in a calculator and solve for XYZ. ठीक. और जब हम XYZ निकालेंगे तो जो रिजल्ट X is for example FAB, Y is FBC and Z is FBD. ठीक है. आप कैलकुलेटर के अंदर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए. जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज FAB इक्वल्स टू 2.52 किलो न्यूटन्स, FBC इज इक्वल्स टू 2.52 किलो न्यूटन्स एंड FBD इक्वल्स टू 3.64 किलो न्यूटन्स. सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी नीडेड टू सॉल्व. ठीक है. इसमें जो चीज़ ख्याल रखने की एक और चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि आपके तीनों मैग्नीट्यूड पॉजिटिव निकल के आए. पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन हमने इनिशियली एज्यूम की थी वो डायरेक्शन ठीक थी. तो हमें जो उन्होंने बोला था दो फोर्सेस कंप्रेसिव हैं, एक टेंसाइल है, हमने वही एज्यूम किया था. आपका आंसर ठीक आ रहा है. लेट्स एज्यूम कि आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते. आप क्या करते हैं, आप सारी फोर्सेस को टेंसाइल एज्यूम कर लेते. तो मैं FAB को मैं इस तरह बना देता और FBC को भी मैं इस तरह बना देता. इन दैट केस मेरे ये आंसर भी नेगेटिव आता और ये आंसर भी मेरा नेगेटिव आता. दैट वुड नॉट हैव बीन अ रॉन्ग रिजल्ट. आपका रिजल्ट ठीक होता. सिर्फ जो पॉइंट होता है उस पर ख्याल करने को होता है कि यू नीडेड टू मेंशन एट दैट पॉइंट कि आपकी इनिशियल एजम्पशन ऑफ द डायरेक्शन वाज रॉन्ग एंड द करेक्ट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द वन एज्यूम्ड. ठीक है. ये चीज़ का ख्याल रखना होता है सिर्फ. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक. Okay, so the next problem that we need to discuss today is problem 3-57.
The problem reads that the ends of the three cables, which are cable AB, AD and AC, are attached to a ring at A, so this ring A, and they are also attached to the plate shown here. Take this plate here. What we need to do is we need to determine the mass of the plate so that the maximum tension in any of the cables does not exceed 15 kilonewtons. So the maximum tension is given. Instead of knowing a particular force, we know what the maximum force can be. ठीक है, तो that's the problem and we need to solve it. तो अभी इस प्रॉब्लम से प्रोसीड करने के लिए the first thing we need to do is we need to realize कि इस प्रॉब्लम को पे ए के ऊपर अगर हम देखें कि ए के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंसीडर दिस एंटायर थिंग एज अ बॉक्स. तो दिस एंटायर थिंग इज अ बॉक्स. ठीक है, और इस बॉक्स का कोई ना कोई वेट होगा जाहिर है. इफ वी अज्यूम दैट द ropes, all the cables are massless, then the only weight is the weight of the plate. So in order for this system to be in equilibrium, the reaction force at A is going to be also the weight of the plate, because summation Fy needs to be equal to 0. So the force at A in the y direction minus W equals to 0, and the reaction force at A is going to be the weight of the plate. ठीक है, इसके बराबर होगा पर डायरेक्टेड अपवर्ड. सो दिस थिंग इज समथिंग विच वी नीड टू नो बिफोर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ए के ऊपर जो फोर्स है वो वेट के बराबर है, बट इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, इट इज नॉट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए वी फर्स्ट ड्रॉ आवर एक्सिस सिस्टम. वी यूज द सेम एक्सिस सिस्टम विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो एक्स वाई जी हमने क्वेश्चन से उठा लिया. Next step, we need to draw all the forces at our point of consideration. Our point of importance right now is point A. तो A के ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? A के ऊपर 4 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. सो A के ऊपर 3 केबल्स की फोर्सेज है और एक रिएक्शन है हुक के ऊपर जो एक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट. ठीक है, तो चारों फोर्सेज शो हो रही हैं इस डायग्राम के अंदर. आपके पास केबल ए बी की फोर्स है, केबल ए सी की फोर्स है, केबल ए डी की फोर्स है और एक रिएक्शन फोर्स है इक्वल टू द वेट ऑफ द प्लेट. अब अगर मुझे इन चारों फोर्सेस के कार्टेशियन वेक्टर्स लिखने हैं, विच इज द नेक्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग फॉर इक्विलिब्रियम इन 3D, वी ऑलवेज हैव टू राइट द कार्टेशियन वेक्टर्स. वी कैन सी दैट द वेट वेक्टर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो वेट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, सो W वेक्टर इज इक्वल्स टू WK. So, अब मसला ये है कि we do not actually know what the weight is going to be. The weight is unknown. हमसे क्वेश्चन के में mass of the plate पूछा हुआ है, तो we do not know what the weight magnitude is. We also don't know the magnitude of any other force. So हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, FAB, FAC, FAD, तीनों का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता. तो FAB फोर्स होगी क्या? FAB फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है UB रिलेटिव टू A. तो जो मेरी FAB फोर्स बनेगी दैट इज द मैग्नीट्यूड FAB मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट B रिलेटिव टू A. ठीक है, पॉइंट B की डायरेक्शन व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम A. अब आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स इन फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर्स. अभी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, इस प्रॉब्लम में यू कैन रिपीट दैट एंटायर प्रोसेस, और ये हम चैप्टर 2 के अंदर भी कई दफ़ा देख चुके हैं. तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इफ यू रिपीट द स्टेप्स, एंड आई एनकरेज यू टू रिपीट द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर्स. अगर आप रिपीट करेंगे स्टेप्स, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट द यूनिट वेक्टर UB रिलेटिव टू A is 4/14I minus 6/14J minus 12/14K. You can repeat the same thing for FAC and you can repeat the same thing for FAD. ठीक है, सबकी यूनिट वेक्टर्स निकल सकते हैं, सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमें पता है. Once we know the Cartesian vectors, the next step is we write summation Fx
equals to 0, summation fy equals to 0 and summation fz equals to 0. चार फोर्सेस हैं. अगर मैं समेशन एफ एक्स लिखना चाह रहा हूँ, आई नीड टू सर्च कि किस किस फोर्स में एक्स कॉम्पोनेंट मौजूद है. डब्ल्यू में कोई एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, बाकी तीनों फोर्सेस में एक्स कॉम्पोनेंट्स हैं. तो सम ऑफ ऑल दीज एक्स कॉम्पोनेंट्स इज इक्वल टू 0. तो 4/14 एफ ए बी माइनस 6/14 एफ ए सी माइनस 4/14 एफ ए डी इक्वल्स टू 0. ठीक हो गया. दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन. You can do the same thing for summation fy. Summation fy may be there only the three forces FAB, FAC and FAD. ये सिर्फ तीन forces के x components, y components हैं. There is no y component in the weight, so I can repeat it. अब minus 6/14 FAB minus 4/14 FAC plus 6/14 FAD equal to 0. Repeat the same thing for summation fz equals to 0, and we can now see that the weight is also going to play a role in this case. ठीक हो गया. अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ये किया कि since -12/14 is going to appear in all three forces, so -12/14 को कॉमन ले लिया. तो -12/14 कॉमन के साथ FAB plus FAC plus FAD, the Z components of the three cable forces plus the weight which is also in the Z direction. All of this summation is equals to 0. Three forces, right? Three forces, three equations, we should be able to solve it. But there is this weight which is also unknown. So in reality, there are 4 unknowns in the system. So we can't actually go ahead and solve this system. Before we see how we can solve this, let us simplify this a little bit further. So simplify करने के लिए we can see that the denominator 14 is appearing a lot in this equations, all three equations. So we can multiply the equations by 14 and rearrange them a little bit. So equation 1 becomes 4ab minus 6fac minus 4fad equals to 0. Similarly, we can find equation number 2 by multiplying with 14. And we can also find equation number 3. Equation number 3 में मैंने एक काम किया हुआ है कि मैंने पहले 14 से मल्टीप्लाई कराया. I took this entire thing to the other side and 12 जो FAB plus FAC plus FAD के साथ आ रहा था, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड करा दिया. So this is the third equation. The equation numbering, you can see that these are labeled as 1.1, 2.1, 3.1, which is just trying to show you कि ये same equations 1, 2, 3 की बात हो रही है. These are the same three equations. The only difference is कि they are rearranged. So 1.1, 2.1 and 3.1 are actually the same equations in a slightly different form. और कुछ भी नहीं. ठीक हो गया. अब क्या करें? अब हमें तीन equations को solve करना है. 4 unknowns हैं. तो what can we do? हमारे पास 2 solution strategies हैं. इनमें से एक solution strategy हम actually 2D के अंदर देख चुके हैं. वो ये थी कि we can solve the entire system in terms of the weight. ठीक. तो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं पहली equation से for example from the first equation what I can do is I can find out one of the variables. So for example, I can say that my FAB is equals to 6FAC minus 4FAD divided by 4. I can replace this here and here. The resulting system will only have 2 unknowns. उसके अंदर सिर्फ FAC unknown होगा और FAD unknown होगा. I can solve these two in terms of the weight. तो for example, मेरे पास FAC let's assume निकल के आया 1.5 W और FAD निकल के आया 0.85 W. I'm just writing fictitious values. I do not know the exact solution here. ठीक है. मैंने इनको वापस इक्वेशन के अंदर प्लग इन किया, मैंने FAB भी निकाल लिया. अभी ये एग्जैक्ट चीज़ मुझे आई डू नॉट नो कि अगर मैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज डालूंगा तो क्या आंसर आएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट समथिंग हियर टू शो यू व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट. ठीक है. अब ये नंबर ज़रूरी नहीं इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ये नंबर्स फिक्टिशियस है. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वंस वी सॉल्व द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ W वी कैन कंपेयर देम. तो वी कैन सी दैट FAB इज एक्चुअली द लार्जेस्ट फोर्स इन दिस सिस्टम. If FAB is the largest force, we can set it to the maximum possible allowed force. ठीक है. maximum force हमारे पास for example 15 किलो न्यूटन थी, हम FAB को 15 रख के W निकाल लेंगे
और W से हम मास निकाल लेंगे। अगर हमें बाकी फोर्सेस भी चाहिए और मैंने FAB से W निकाल लिया है, वी कैन प्लग इट इन द इक्वेशन फॉर FAC एंड FAD एंड फाइंड देम आउट। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो सकता है। मसला क्या है इसमें मसला ये है कि ये मैनुअल तरीका है, इट विल टेक सम टाइम टू डू। ठीक है, हो जाएगा, बट इफ यू आर विलिंग टू डू सम मैनुअल वर्क यू कैन डू दिस। ठीक है, देयर इज अनदर वे टू डू इट विच इन्वॉल्व्स स्लाइटली लेस मैनुअल वर्क। ठीक है, वो क्या है? वो ये तरीक़ेकार है कि हम कोई सी एक फोर्स को अज्यूम कर लें मैक्सिमम, बाकी दोनों फोर्सेस निकाल लें और फिर चेक करें कि क्या हमारी मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने FAB को 15 किलो न्यूटन खुद से अज्यूम कर लिया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब तीसरी इक्वेशन में तो 3 अननोन है, 1 2 3, लेकिन पहली दो इक्वेशन में देयर आर ओनली 2 अननोन्स। सो लेट मी पुट इट लाइक दिस। सो दिस इज 1 अननोन, दिस इज द सेकंड अननोन, दिस फर्स्ट अननोन, दिस इज सेकंड अननोन। तो मैं पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ फॉर द रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स। लेट्स अज्यूम कि मैंने FAB को 15 रखा था, तो मेरे पास FAC जो है वो 5 किलो न्यूटन निकला और FAD जो है मेरे पास 18 किलो न्यूटन निकला। Again, the numbers do not represent the actual system. These are fictitious numbers. ठीक, अब जब ये चीज़ आई तो मैंने क्या किया? मैंने ये अज्यूम किया था खुद से, बाकी दोनों मैंने कैलकुलेट किया और मैंने ये देखा कि FAC तो चले 15 से कम आ रहा है, लेकिन FAD जो है वो 15 से ज़्यादा आ रहा है। दिस मीन्स कि दिस सिस्टम कैन नॉट बी एक्चुअली these forces do not satisfy the condition provided to me in the question. तो अब इससे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। वो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि FAD इज एक्चुअली द लार्जेस्ट फोर्स। तो व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट? अगर मेरी पहली असम्पशन गलत हो गई तो मैं ये ढूंढूंगा कि सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है। जो भी सबसे बड़ी फोर्स है, आई कैन इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन सेट दैट इक्वेशन इक्वल्स टू 15। तो मैंने इस केस में FAD को 15 किलो न्यूटन प्लग इन कर दिया और उससे मैंने FAB भी निकाल लिया और उससे मैंने FAC भी निकाल लिया। ठीक हो गया। जब ये फोर्सेस निकल के आ गई तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी वेदर नाउ दीज फोर्सेस आर गोइंग टू बी लोअर और नॉट, एंड एक्चुअली दे हैव टू बी लोअर, क्योंकि जब FAB 15 था तो FAC 5 था और FAD 18 था। तो जब ये 15 हो गया तो दे हैव टू बी लोअर देन FAC। जो मैक्सिमम फोर्स है ना सिस्टम के अंदर वो सेम रहेगी, वो अगर वो FAD है तो दैट विल रिमेन एज FAD। ठीक, तो लेट्स सी कि हम इसको एक्चुअली अपने सिस्टम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम लोग सेकंड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम में और लेट्स सी कि ये किस तरह अप्लाई हो रही है। तो हमने करना क्या है, हमने कोई एक फोर्स को अज्यूम करना है कि वो मैक्सिमम अलाउएबल फोर्स के इक्वल है। तो लेट्स अज्यूम कि FAB इज एक्चुअली इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन्स। If FAB is 15 kilonewtons, then the first equation results in minus 6 FAC minus 4 FAD equal to 4 FAB. दूसरी तरफ चला गया, it becomes minus 4 FAB. FAB is 15, this becomes minus 60. Same thing I can do in the second equation. 6 times 15 becomes 90. तो minus 90 उठ के जब दूसरी तरफ जाएगा that will become प्लस 90। ठीक हो गया। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, कैलकुलेटर में डालें, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट FAC इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 0। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन इन दिस सिस्टम। ठीक है, और FAD इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 15 किलो न्यूटन। तो FAD इज नॉट मोर देन द मैक्सिमम अलाउड, FAD इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलाउड एंड FAB इज ऑल्सो इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल अलाउड। ठीक, तो if this is true then what solution we just found out is actually correct। ठीक है, आपका सिस्टम ये चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि आपके सिस्टम में मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स 15 किलो न्यूटन होनी चाहिए। तो आपने एक्चुअली अभी तीनों फोर्सेस निकालनी, एक फोर्स हमने अज्यूम की थी और दो फोर्सेस हमने सॉल्व करके निकाल ली। अगर लेट्स से कि 15 किलो न्यूटन रखने पे इन दोनों में से कोई एक फोर्स भी 15 से ज़्यादा आ जाती
तो जो बड़ी वाली फोर्स होती हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको 15 रखते और सिस्टम को दोबारा सॉल्व करते बाकी दोनों फोर्सेस के लिए। तो द मैक्सिमम यू नीड टू डू इज 2 स्टेप्स, यू डो नॉट नीड टू गो बियॉन्ड 2 स्टेप्स। ठीक है, हर दफ़ा 2 स्टेप से काम हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेप से आपको मैक्सिमम फोर्स पता चल जाएगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको मैक्सिमम अलाउड के इक्वल रख लें एंड रिसॉल्व कर लें सिस्टम को। यू आर गोइंग टू गेट ऑल 3 फोर्सेस विच आर आइदर इक्वल टू और लेस देन द मैक्सिमम अलाउड। ये स्ट्रेटेजी इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट इन 3D बिकॉज आपके पास मैनुअल काम करना बहुत कम हो गया। यू कैन यूज अ कैलकुलेटर टू डायरेक्टली सॉल्व दिस। अब आगे चलते हैं। तो हमें तीनों फोर्सेस पता चल गई, ठीक है। अब अगर हमें फोर्स पता चल गई तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली देन फाइंड आउट द वेट ऑफ द सिस्टम। तो हमने तीसरी इक्वेशन अप्लाई करनी शुरू कर दी। तीसरी इक्वेशन से व्हाट डू वी हैव? वी हैव FAB इक्वल्स टू 15. So this thing right here is FAB, this is FAC and this is FAD. सही हो गया। तो हमें तीनों फोर्सेस पता थी, तीनों फोर्सेस प्लग इन कर दी, कैलकुलेटर में डाला, सॉल्व किया, वी गॉट द वेट ऑफ द सिस्टम। जब वेट निकल के आ गया उससे मास निकालने के लिए हमने G से डिवाइड करा दिया एंड वी गॉट 2622 kgs। बुक के अंदर इसको रिपोर्ट किया हुआ है एज 2.622 मेगाग्राम्स। मेगाग्राम्स यूनिट कई दफ़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्टिक टू kgs, थाउजेंड्स में आंसर आएगा, डजेंट रियली मैटर। ठीक है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। 2622 kgs इज द मास दैट इज अलाउड इफ द टेंशंस आर नॉट मोर देन 15 किलोन्यूटन। ठीक है, 15 किलोन्यूटन से कम टेंशन रखने के लिए दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। ओके, सो दिस वॉज इट। 2 प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, दोनों को रिसॉल्व करके देखें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आस्क मी, ठीक, गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दें। Hopefully this time around the voice quality is improved. I am using a different software this time around. Hopefully this has helped. Let's see, report कर दें अगर कोई भी मसला हो रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।